So you are sharpening your heads, dear teachers. So please don't take this very training in a negative sense. Experiential learning means no content, less content, more competency. When you go to the class, dear teachers, you must make it clear why you are here. Hi, good morning, teachers. How are you this morning? The topic given to me is activity-based learning and experiential learning. Well, I'm happy to share with you all that when I stepped into this branch of yours, and I was so happy to see kids thriving with these activities. Some activities, I think, summer camp is going on, sir. Manoj sir, yeah. So big round of applause for yourselves. You people are experiencing those things already. ताली नहीं बजाएंगे आप लोग, तो miserly हैं. I'll take 20 minutes to break the ice session. Means I'll engage you people and I'll engage myself as well. And I shall be talking about, or we shall be rather, not I, we shall be discussing all together the ways and methods, the tools and techniques, how to take this very pedagogy to the classrooms. That's the purpose, okay? Please be comfortable. The session has been planned for you people, Ma'am Jodhpur. The first one, welcome one. What's the name of that ma'am who introduced me here? Madhu ma'am. Madhulika Saini. Madhulika ma'am forgot to mention one of my qualities. Should I share that trait of mine with you? I'm infamous for using humor. Do you know what is humor? What is humor? Please be generous in your responses. I'm not here to test you people. The purpose is simple only. I'm here to share those techniques, tools, pedagogies which are there with me. A lot was spoken about me from the stage here, that I have an experience of conducting many workshops, rather than 600 plus sessions I have conducted so far. So I have those tools and techniques with me. That skill set I wish to share with you people. That's the purpose. Clear? If you people are not contributing, if you are not responding, I'll prove a great failure. आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मत बोलिएगा. बोलोगे? या क्या बोला मैंने? सेइंग कौन सी थी? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. काट क्या होता है? लकड़ी कास्ट बोलते हैं जिसको. अगर संस्कृत निशब्दावली का हम लोग बात करें, कास्ट है. मैं अपना तरीका बताऊंगा थोड़ा. एक बार मैं आई एम गेटिंग फेमिलियर विद यू पीपल. पर्पस वही है. एक बार थोड़ा सा अपन जुड़ जाए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए. एंड व्हाट द पर्पस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं. आई एम मेकिंग माय ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हियर. व्हाई? बिकॉज़ व्हाई आई एम हियर एंड व्हाई यू पीपल आर हियर. So CBSE has made it mandatory that the teacher shall undergo 50 hours training. That's why you people are here. Today's training will be counted as 6 hours in-house training, because I'm CBSE certified master trainer. So this training of yours will be counted among those 6 hours. Then how many hours training will be left? 24 hours. दोबारा आ जाएंगे कंफर्म से क्या जा रहा है. वो मैं वेरी से दोबारा बताइएगा. हेल्प, this is not fair. बाद में करिएगा, बाद में जाने. Okay, so I'm so happy that when you go to the class, dear teachers, you must make it clear why you are here. Suppose you are a science teacher, you must make it very clear in the very beginning what will you uncover during the course of your period. I'm using the word uncover. This word has been taken from NEP document. Uncover means, generally what do we say? How means I'm here to cover the syllabus. After syllabus cover हो गया है, covering the syllabus. We are uncovering the syllabus. This terminology has been taken from NEP document. हम लोग बहुत सारी ग्लोसरी जो सीबीएसई की वो भी बात करेंगे. एंड पर्पस यही है. सो व्हेन यू गो टू द क्लास, यू मस्ट मेक इट वेरी क्लियर व्हाई यू आर हियर. सो यू मे राइट दिस सेंटेंस. प्लीज राइट डाउन. टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम. Tell them what you are going to tell them. What does it mean? Please be honest, be quick, please contribute for the successful completion of today's session. Otherwise, it will remain a monologue. Then why training is mandatory? Once Abraham Lincoln said that if I'm given 6 hours to chop down a tree, I'll spend 4 hours to sharpen my axe. So you are sharpening your axe, dear teachers. So please don't take this very training in a negative sense. The purpose is to sharpen your skills, and you must be thankful to your school that your school is keen to upgrade you people, to upskill you people. So it's not a burden. Please don't take this very workshop as a burden. This is for your upskilling only. Because my director is from Indian Army background. He always focuses on one point, that a school is as good as its teachers.
And one more saying is also there. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. What is the meaning of this very statement? Please, whatever you say is absolutely right. Okay, let me repeat. Let me repeat it again. Have you seen children in the morning assembly? God for the day is on sweet and restful sleep. Thank you so much. They will close their eyes and they are in a hurry. They will deliver their speech, thought, and then they will go. और कई बच्चे होते हैं वो तार में लटके हो जाते हैं और वो माइक ऐसे से करता है. Why does this happen? उनको लगता है कि everybody is looking at me. I'm being observed. मुझे देखा जा रहा है. People's eye means, and the child fails to face the eyeball of the audience. That's why this happens. Suppose this thing happens with this gentleman, what will happen? I won't be able to speak. So if a teacher, मैं क्लास में बहुत अच्छा बोल रही हूँ, कितने बच्चे बैठा लो, इतना अच्छी पढ़ा के आती हूँ, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम कहती हैं कल आपको मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देना है, मैं तो जिंदगी छुट्टी ले लेती हूँ. मेरे गला खराब है, एक्चुअली वो मेहमान आ रखे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, कल तो रहने दीजिएगा. It's kill me, but don't ask me to go to the street and speak something. पानीपत की पहली लड़ाई was fought in the year 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. Second battle was fought between Akbar and Timur. The name was obviously of Panipat. The battle of Panipat was fought between Anand Akali and Marathas and Udaan. ये वाले हैं किराए पे देते थे उन्हें. बिजनान जाना है, कुछ भी लड़ाई हुई बेंगलोर में, पुलिस और पानीपत. तो पहले बुकिंग करवा लेते थे. हरियाणा वाले वहाँ बैठे मोटा उटा डाल के चार पाई डाल के हुक्का कोई नहीं बोले लड़वाई ऐसा होता था. नो पानीपत दिल्ली के पास था, दिल्ली कैपिटल थी और खाली मैदान पड़ा था, लोग लड़ते थे. हालांकि लड़ाई काफी हुई हरियाणा में, पर मेजर बैटल वाज फॉट वे बैक इस वाले युग से पहले. कौन सी थी? कुरुक्षेत्र वाज फॉट 18 दिन तक चली थी. किसके बीच थी? पुलिस ने हमारे घर वालों मना किया लड़ाई के बीच में मत जाना. सपोज आई रिमेंबर ऑल द डेट्स आर ऑन माय टिप्स. But I don't know. मैं हमेशा गाली कौन था? क्यों लड़े वो? लड़ तो लिए क्यों आ रहा? बाबर क्यों जीता? बाहर का आक्रमणकारी इन्वेडर था, अपने यहाँ आया, वो तो थोड़ी सी सेना लेकर आया था. And he defeated Ibrahim Lodi, who was the emperor of Delhi, and then he established Mughal Empire in the year 1526. Why did this happen? This is inspiration. The child is reflecting on the question. Then यार बाबर हार जाता तो और इब्राहिम लोदी जीत जाता, उसको मार के भगा देते. बाबर और आक्रमणकारी था, नो बाहर से आया था, फरगना का शासक था, वो लुटेरा था, उस कौम से ही था, लूट मार करने आता. यहाँ लोगों ने कहा इसको बुलाया जा सकता है. आने वाले लोग तो शानदार है शुरू से, कोई भाई लड़े उससे राजा बन गए. ये सच्चाई है, मैं ह्यूमरस वे में कह रहा हूँ. अब सोचो बच्चों, अगर बाबर नहीं आता इंडिया में तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? कुछ बताइए प्लीज. क्या या मुगल एम्पायर नहीं होता? बहुत बड़ी बात करेगी. उनको ऑब्जर्वेशन शानदार है. और सर मैंने एक चीज नोट करी है, तो जब भी फट मत होता ना, ट्रेन जरूर आती है. कोई बात नहीं जी, पूजा करो. क्या होता? वेरी गुड. पॉजिटिव लोग कहते हैं, इतना नेगेटिविटी नहीं फैलती जो आजकल मार काट मची है, बिल्कुल बहुत बड़ी. आप बताओ अगर मुगल वेरी गुड रिलीजन्स का डिवीजन नहीं होता, जो बाइफिकेशन हो रखा ना, जैसे बिग गैप, ये नहीं होता. एनी अदर थिंग? वेरी गुड. ताजमहल ताजमहल नहीं होता. ताजमहल होता ही नहीं. ये जो आर्किटेक्चर है शानदार वाला, ये नहीं होते. बेहतरीन कालीन है हमारे पास, ये नहीं होते. मुगल जो व्यंजन हम लोग खाते हैं वो नहीं होते. मुगल गार्डन नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती. दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट. देखो अब आप जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, यू हैव अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन द क्लासरूम. You must accept each and every response. वो डिवीजन की बात करेंगे, वो किसी उसको करेंगे, अपनी चीजें लेबल मत करिए उनके ऊपर. एक टीचर को रिलीजियसली करेक्ट होना है, पॉलिटिकली करेक्ट होना है. आप किसी पार्टी विशेष की जय जयकार मत करिए, वहाँ झंडा लगा करना चाहिए यहाँ पर. हाँ नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे का अपना थॉट प्रोसेस. वेरी गुड. It's not a destination, it's a journey. Very good. Any other thing? My friends at the back. Yes sir. Skill learning, very good. Yeah. Learning by observing, very good. Learning by speaking as well. Reflection, बोलना है. सोचना, reading, very good. Spontaneity, visuals, very good. Visual things. Any other thing? Pardon. Responding, very good. Responding means responding to various objects. आपने कुछ देखा वहाँ पर, वीडियो देखी. अब हर आदमी था, एक आदमी, किसी ने एक ग्रुप था, उसने कभी हाथी नहीं देखा था.
सबको ग्रैंड कॉल कर दिया बड़े बड़े उनको बांधे गए बाहर से ला रहा था वो और उनसे कहा गया एंड ironically you people were groomed like this. We did BA and BA what was taught to us in BA classes simulated teaching. Experiential learning क्या था? आप क्लासरूम्स में गए आपने लाइव बच्चों को पढ़ाया वहाँ पर this is experiential learning. उसके बावजूद भी इंटरव्यू होता है डेमो क्लास होती है अगर आपके अंदर वो गुण है वो कुवत है एंड इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक ना देन फियर किस चीज का होना चाहिए क्यों होना चाहिए किसी को बिठा दो सामने ये कॉन्फिडेंस कब आएगा कैसे आएगा कहाँ से आएगा कब आएगा कैसे आएगा एक्सपीरियंस वेरिएबल एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आएगा मैंने ऐसे से लोग देखे जो 30 साल का एक्सपीरियंस है आपकी बात नहीं काट रहा हूँ मैं I'm not being critical क्यों नहीं बोल पाते हैं एक वक्त वो रिटायरमेंट हो रहा है किसी बच्चे से बात ही नहीं करेंगे नजर ही नहीं क्वेश्चन दो what do you infer about the trainer please one quality of the trainer till now multi-language person बोलो उनको कॉपी मत करियो ऐसा होता है एक बच्चे कुछ बता दिया क्या बना था डॉक्टर तो चाहे वो नर्स बने चाहे हाँ वो कुछ बने कंपाउंडर बने मतलब डॉक्टर वाले लेवल पे चलते हैं अलग बोलो थोड़ा सा प्लीज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन योर रिफ्लेक्शन गुड ह्यूमर उन्होंने ह्यूमर कह दिया आपने गुड लगा दिया है बात आई इन नाम से मैंने पूछा था पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ बोले मेंढक के 2 भाई बहन मेंढक के मम्मी पापा जैसे खत्म मैन यू आर वेरी स्मार्ट वो तो कौन थे वो स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल आई एम प्राउड ऑफ यू मैम योर नेम प्लीज अनुराधा मैम बहुत बढ़िया बोल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऊपर देख रहे कबूतर देखा आपने कबूतर बिल्ली को देखता उसको सोचता आंख बंद कर लूंगा और बिल्ली मुझे दिखे देख मुझे नहीं दिख रही बिल्ली को बिल्ली को मैं थोड़ी देखूंगा उसकी टेटवा सुनते गर्दन कबूतर को मार डालती है बिल्ली मत बनिए कबूतर उधर देख क्यों देख रहे हो प्लीज या शी इज लुकिंग एवरीवेयर शी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर दिस वेरी पर्पस उनको स्पेशल कहा गया कि आपको इधर उधर देखना वो प्लीज सिंगल क्वालिटी ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन आपकी अपनी राय इंडिविजुअलिटी आपकी स्पॉन्टेनिटी आप तैयार हो के चूज रेडी फॉर दिस वेरी क्वेश्चन ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किसी अगले 4 घंटों तक जी मतलब एक्सपीरियंस महसूस करेंगे थियरी भी चलेगी लेकिन उसके साथ बातें भी चलेगी उसे अब तक चेंज क्लियर हुई ये लगाया तो अपने जैसा ही हुआ ना शुरू में जो बात तो आपकी चोरी के भाइयों की भी थी जुबान कौन आ गई होता है अब क्यों हुआ ऐसा बोलो बिकॉज़ ऑफ a new personality that came in front of us इनको आधा किलो चांदी दे दिया क्या बात कर रहा है अरे आप लोग जलना चाहिए फील जेलस उनको चांदी मिल गई गुड जी समझे चांदी वाला चांदी इज वेरी कॉस्टली ना अब आप जुड़ पा रहे हो क्यों जुड़े वेरी गुड वेरी गुड हेल्थी एनवायरनमेंट क्या है इंटिमिडेटिंग नहीं है कॉन्डेसेंडिंग फ्रेंडली मैंने जो कह दिया वही फाइनल है अगर मेरे साथ एक भी चीज गलत बोली ना गुड इट से इन द बिगिनिंग ईच एंड एवरी रिस्पांस ऑफ योर्स इज अ करेक्ट रिस्पांस लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर आई एम नॉट हियर टू टीच यू ये कहना क्लास में आपने कह दिया कि आई एम पीएचडी होल्डर इन दिस वेरी सब्जेक्ट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स 15 इयर्स सुनेंगे नहीं आपको कितना जोर लगा यू बस ही आती है ये उधर क्यों हो रहा है जैसा दिस हैपेंस व्हेन वी आर व्हाट वी कॉल इंटिमिडेटिंग जाके इन लोगों ने आंखें दिखा दी या आंखें दिखाई नहीं आई हैव सीन टीचर्स कि मैं 2 बच्चों का नाम जानता हूँ अनुराधा का और मधुलिका का वो एक फर्स्ट मॉनिटर है अनुराधा सेकंड मॉनिटर है उनका बाकी लोगों से कोई मुझे कोई मतलब ही नहीं होता पढ़ रहे हैं बैठे हैं कि सत्यानाश हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम का पता है आप नहीं है ऐसा प्लीज सर क्या माइंड ऐसा है हाँ नहीं अच्छी है वो बढ़िया है अच्छा है बहुत बढ़िया है उनसे 100 ग्राम चांदी लेंगे हम लोग पहले स्टेटमेंट ऐसा मारती है खुद चलता है सुनिए होगा क्या जनरली हम लोग वही कंडीशनिंग कहा नहीं कर पाएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग मींस नो कंटेंट लेस कंटेंट मोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी यू में राइट इट डाउन दुखी नहीं होना है क्योंकि देखो मुझे तो टर्म्स आते हैं क्यों आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ दिस टर्म्स मुझे तो अब मैं ऐसे भारी भरकम वर्ड्स बोल रहा हूं आप सुप्रीम को घुमाने इतना इंटेलिजेंट आदमी कहां से आ गया हमारे जोधपुर में सोचोगे ना नहीं आई डोंट यूज jargon I use simple language
language which suits you people. Because I know इतना काम होता है, टीचर ओवरबर्डन रहते हैं, उनके पास ये टर्मिनोलॉजी खोजने का समय नहीं होता है. And what the purpose? Purpose का मतलब क्या होता है? Objective. Objective what I am going to tell you, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ. I'm making my objectives clearer here. Why? Because why I am here and why you people are here. So CBSE has made it mandatory that the teacher shall undergo 50 hours training. That's why you people are here. Today's training will be counted as 6 hours in-house training. Because I'm CBSE certified master trainer. So this training of yours will be counted among those 6 hours. Then how many hours training will be left? 24 hours. When you go to the class, dear teachers, you must make it clear why you are here. Suppose you are a science teacher, you must make it very clear in the very beginning what will you uncover during the course of your period. I'm using the word uncover. This word has been taken from NEP document. Uncover means, generally what do we say? How means I'm here to cover the syllabus. After syllabus cover ho gaya, then covering the syllabus. We are uncovering the syllabus. This terminology has been taken from NEP document.